I have started the chapter business environment, and in our last class, जो हमारी last class गई थी, उसमें हम लोगों ने जो है business environment, what is business environment first, and then what is its significance and features हम लोगों ने पढ़ा था, right? And today we are moving to the second one, that is dimensions. अभी आपको मैंने पहले भी बताया था. Once again I'm telling you, when it comes to the significance or features, that would come as a part of identify and explain करने के लिए आ सकता है. Whereas हमारा जो ये हम जो dimensions अभी पढ़ेंगे, they will come only to identify. Sometimes कभी कभी, because in boards you are not that much sure, but sometimes it may be that you are given one particular environment and आपको उसे explain करने के लिए बोल सकते. अभी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें कंपोनेंट को कैसे मतलब एक्सप्लेन करना है. द प्रॉब्लम इज कंपोनेंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है. So in your book you have some keywords, and as I have been repeatedly telling, वो जो keywords होते हैं बच्चे, वही आपके questions में उन लोगों ने use किया होता है. तो you need to find out those keywords, या in another word you can say आपको वो keywords याद होने चाहिए कि ये economic है, ये technological है, ये मेरा जो है political है, and if those are there you can easily identify. So let us start the chapter along with NCERT, that is components. We need to start from here. Now this dimensions को आपके पेपर के अंदर, they can be called as dimensions, they can be called as elements, they can be called as components. आपको मतलब कि जैसे हम बोलते हैं importance and significance are both the synonyms, features and characteristics. Similarly, if from this chapter you have the dimensions or components or elements, तीनों का सेम मीनिंग आएगा. मीन्स उसके अंदर आपको यही पता, आपको यही देखना है, इकोनॉमिक, सोशल, यही वाला जो लिखा हुआ यही आप लोगों ने देखना है. दिस वन. Dimensions are considered to be the one which include economic, social, legal, political conditions, जो कि क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर you are going to make the decisions and improve the performance of the enterprise. And in contrast, और इनको हम लोग लेकर आते हैं general environment को. This is actually an MCQ question. Specific हो जाता है, specifically आपके business को कौन से जो component है वो असर कर रहे हैं. And this is generalized. These and which mostly influences many enterprises at the same time. अब specific सिर्फ उनको करते हैं, लेकिन general normally सबको करते हैं. However, management of every enterprise can benefit from being aware of these dimensions instead of being disinterested. For instance, scientific research has discovered a technology that makes it possible to produce an energy efficient light bulb that lasts 20 times as long as standard bulb. This is a question. Now, मतलब कि आप ले सकते हो, this is a question. Senior managers, including divisions at GE and Philips, recognize this discovery at the potential significantly affecting their unit growth and profitability. यानी कि this is actually, ये जो है कौन सा dimension है ये पूछा जाए तो this means this is the technological.
So they carefully followed the progress on research and profitably used its finding. यानी कि ये अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए तो दिस डायमेंशन इज साइंटिफिक. कोई भी नई चीज, कोई भी नई मतलब की चेंज कैन बी प्रॉफिटेबल इफ द मैनेजर्स आर अवेयर. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग बहुत सारे मीम्स देख रहे होंगे. इनफैक्ट देयर इज इन द लास्ट क्लास ऑल्सो आई टोल्ड यू कि जोमेटो पर मतलब कि देयर वाज अ न्यूज कि पिछले दिनों में लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी दी है एंड मोस्ट ऑफ देम हैव गिवन 2000 रुपीज नोट. एंड अभी मैं पढ़ रही थी, पता नहीं कहां पर, उन्होंने बोला हम 2000 रुपीज के नोट को नहीं एक्सेप्ट करेंगे. एक्चुअली दिस इज क्रिएटिंग अ केओस. एक्चुअली दिस इज क्रिएटिंग अ केओस. फॉर एग्जाम्पल, अभी जून है, जुलाई है, अगस्त एंड सितंबर है, एंड दीज मनी मतलब दीज जो नोट्स हैं वो इतने आफादफी मच रहे हैं. बट इनफैक्ट अगर बिजनेस उसको समझती है, उसका इफेक्ट क्या है वो समझ लेगी, तो इट विल यूज इट अकॉर्डिंग. मतलब कोई भी चेंज व्हेन इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन एनी फील्ड और एनी चेंज टेक्स प्लेस, लाइक पॉलिटिकली हम चेंज को इंट्रोड्यूस करते हैं, लीगली हम करते हैं, बट इकोनॉमिक या सोशल होते रहते हैं. Now, what comprises of economic environment? Class 12. This you need to just, मैं कह सकती हूँ कि इसको अच्छे से रट के रखना. अगर आपके क्वेश्चन में इन ये वर्ड्स या इनसे रिलेटेड वर्ड आएंगे तो इकोनॉमिक है. अभी मैं नीचे आपको करवाऊंगी. Here it is given the components of economic environment. This is very very important. All those ऐसे boxes बहुत important है. इंटरेस्ट रेट्स, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो डिमांड एंड सप्लाई थियोरी है, आपका जो लोगों का खरीदना होगा वो कम हो सकता है. इन्फ्लेशन, राइट नाउ आई वाज रीडिंग वन न्यूज कि वर्ल्ड के वर्स्ट सिटीज कौन से हैं जहां लोग रहना नहीं चाहते हैं. तो नो दो मतलब आधे तो ऐसे थे जिनको हम लोग मतलब कि जानते भी नहीं है. हाँ, एक आध मैंने देखा, श्रीलंका, वहां अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है. देन जाम्बिया, इन्फ्लेशन रेट. तो बिजनेस वालों के लिए इफ द इन्फ्लेशन इज मोर तो डेफिनेटली लोग कम खरीदेंगे. चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, मतलब आप 100 रुपए कमाते हो. अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम. आई नो यू ऑल आर इकोनॉमिक स्टूडेंट्स स्टिल. मीन्स इफ यू आर अर्निंग 100, आउट ऑफ दैट हाउ मच यू आर एबल टू स्पेंड. क्योंकि अकॉर्डिंग टू द theory of economics, you are rich if you spend only 10% and keep 90. तो आपके पास कितना डिस्पोजेबल इनकम है? ज्यादा है तो नेचुरल है कि आप चीजें खरीदोगे, कम है तो नहीं खरीदोगे. इन द ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड द पीपल डिड नॉट बाय एनी ऑफ द लग्जरीज. स्टॉक मार्केट इंडिसेस अगर ऊपर चढ़ाव नीचे, value of rupee are some of the economic factors that affect the management practices in a business enterprise. Short and long-term interest rates significantly affect the demand for product and service. In case of construction companies, automobile manufacturers, long-term rates are beneficial because they result in increased spending by consumers for buying homes and cars on borrowed money. Similarly, a rise in disposable income due to increase in GDP increases demand for products. यूएस का अगर हम लोग मार्केट को लेते हैं, 19 मतलब कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उस वक्त में जब फोर्ड मोटर्स वहां पर आया था तो ड्यू टू गुड एम्प्लॉयमेंट वहां पर जो आपका डिस्पोजेबल इनकम था वो ज्यादा हो गया था. और वो ज्यादा होने की वजह से वहां पर हर तरीके के जो गुड्स होते हैं लाइक टीवी, रेडियो, ये सब जो है ज्यादा हो गए थे. सो दैट इज हाउ द स्टेटस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री रोज. हाई इन्फ्लेशन रेट्स जनरली रिजल्ट इन कंस्ट्रेंट मतलब उन पर रोक लगा देती है on business enterprise as they increase the various cost of business such as purchase of raw materials, machinery, payment of wages, salaries.
अब आपके क्वेश्चन के अंदर यू मे फाइंड सम ऑफ दीज, या फिर ये जो ऊपर मैंने आपको बताया इनमें से कोई, नॉट ऑल बट देयर माइट बी समथिंग, यानी कि एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी, रेट, इन्फ्लेशन, अगर ऐसा कोई भी वर्ड आएगा तो यू कैन मार्क इट ऑन इकोनॉमिक. Existing structure of economy, role of private and public sectors, the rates of growth of GNP and per capita, rates of saving and investment, volume of imports and exports, balance of payments, agricultural production in trends, expansion of transport and communication facilities, money supply, public debt, planned outlay. द नेक्स्ट इज सोशल, यानी कि सोसाइटी के अंदर जो हमारे फैशन, कस्टम्स, हमारे ट्रेडिशंस, वैल्यू, सोशल ट्रेंड्स, यू नो व्हेन इट इज मैरिज, तो कितने ज्यादा आप देखोगे दुकानों में स्पेसिफिकली दोज विच आर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिजनेस हैव अ बूमिंग. ट्रेडिशन डिफाइन सोशल प्रैक्टिसेस, जैसे हम ईद मनाते हैं, दिवाली, क्रिसमस, गुरु पर्व, मतलब कुछ भी होता है तो उस वक्त में वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू दैट. किसी किसी के ट्रेडिशन में कपड़े खरीदना जरूरी होता है, किसी में स्वीट्स को एक्सचेंज करना. और आजकल क्या है इसमें पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो मैं बता रही हूँ. फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स पीपल हैव नाउ अंडरस्टूड that sweets जो होते हैं we are not able to consume it, and moreover the trend for chocolates and juices have come up. मैं क्वेश्चन बता रही हूं. the trend for chocolates and juices have come up. Now what does this change? This is a change in the society's thoughts. हमारी सोच में changes है. so this is social environment. Values refer to concept that a society holds in high esteem. In India, individual freedom, social justice, equality of opportunity, national integrations are values. In business terms, these values translate into freedom of choice in the market, business responsibility towards society, non-discriminative employment practices. Social trend present various opportunities and threats. For example, the health and fitness trend has become popular among large number of urban dwellers. This has created a demand for products like organic food, gyms, bottled water, food supplement. और जो अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था, that is also one of the question that came. तो एनीथिंग विच इज देयर इन द सोसाइटी, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा था कि एक पर्टिकुलर कंपनी है, मतलब आई विल टेल यू व्हाट वाज अ क्वेश्चन अबाउट. देयर वाज अ पर्टिकुलर कंपनी व्हिच वाज इंडल्ज्ड इन स्वीट मेकिंग. लेटर ऑन दे रियलाइज कि नाउ पीपल डू नॉट बाय द स्वीट्स, they are more on to chocolates and juices which are good for health or which are easily consumed. Therefore they changed their, उन्होंने अपना जो पूरा मतलब कि सेट था वो चेंज किया एंड एडेड दीज थिंग्स. तो ये कौन सा चेंज था? तो सोशल चेंज था. किस चेंज की वजह से उन्होंने अपने मेनू और उसमें चेंज किया? सोशल. Technological, it is easy to identify anything which is related to science, technology, any new invention, everything. It includes forces related to scientific innovations which improve new ways of producing goods. अब ये जो लिखा हुआ है, this can be your question. मतलब X company saw that the new machines could produce goods and services with more efficiency. तो ये कौन सा change है? Recent technological advances in computers, electronics have modified the ways in which companies advertise their products.
आजकल जो है सबसे बड़ी बात क्या है, आप कोई भी, पहले क्या होता था, मोस्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट वर शॉट ओनली इन हिंदी और इंग्लिश। लोकल लैंग्वेजेस में वो अलग तरीके से होता था। अभी क्या होता है, शूट एक ही इंसान कर रहा होता, मतलब पहले ये होता था कि अगर कल्याण ज्वेलर्स का अमिताभ बच्चन जी वॉज हेयर, तो वहां प्रभु थे, दूसरी जगह पे ममूती थे, ऐसे करके था। बट नाउ व्हाट हैपेंस इज द सेम पर्सन है, सिर्फ शूट हो रहा है, पीछे से वॉइस ओवर दे रहे। दिस इज द न्यू वे। यानी कि उनको अब पहले 4 जनों पे खर्चा करना पड़ रहा था, 4 रीजन के लिए, अब वो एक ही इंसान को ले रहे हैं और चारों रीजन में सेम थिंग इज बीइंग एडवर्टाइज्ड। फॉर एग्जांपल, ऑल द मूवीज, years back, if someone watched Tamil movies or Telugu movies, it was just something मतलब कि बड़ा। और अभी क्या हुआ है, RRR, पुष्पा, इन सब ने, how? Because the movie was in 1 or 2 language, it was dubbed into different languages using certain techniques। पहले डबिंग अलग से दिखती थी, अब क्या है कि the computer technology has changed over, so this is how। It is also now common to see the computerized information kiosk। मतलब आप जाओ, आपने घर, मतलब कि इफ यू आर देयर इन द एयरपोर्ट और यू आर देयर इन द रेलवे स्टेशन, आपको कुछ पूछना है तो आप जाकर सिर्फ वहां पर वो बटन दबाते हो एंड दैट कैन टेल यू। द www multimedia pages। Similarly, retailers have direct links with suppliers who replenish stock when needed। अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल, यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, आप फैब मिंत्रा में काम करते हो एंड यू आर वर्किंग इन से चाणक्यपुरी बैंक। अब आपके पास एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खत्म हो गया, बट यूजिंग द सिंगुलर डेटाबेस आप इमीडिएटली देख सकते हो कि इन विच आउटलेट इट इज अवेलेबल एंड यू कैन इवन एक्सचेंज इट। इट्स पॉसिबल नाउ, पहले नहीं था। देन आप लोग जो, हम लोग जो ऑनलाइन में शॉपिंग करते हैं, हम ऑनलाइन में शॉपिंग करते हैं व्हेन वी आर बाइंग फ्रॉम क्रोमा और रिलायंस, तो वो आपसे पूछता है कि विच इज योर नियरेस्ट, एंड व्हाट डू दे डू, इवन इफ दे डोंट हैव आल्सो, तो वो प्रोक्योर कर लेते हैं। दिस इज बिकॉज हम सेंट्रलाइज शॉपिंग कर रहे हैं एंड दैट इज लोकलाइज्ड, इट इज गिवन, so that is there। Internet, sorry, manufacturers have flexible manufacturing systems, airline companies have internet and www pages where customers can look for flight times, destination, fare, and book their tickets online। In addition, continuing innovation in different scientific and engineering fields such as lasers, robotics, biotech, food preservatives, medicine, telecommunication, synthetic fuels have provided numerous opportunities and threats। For example, जो थ्रेट कैसे हुआ, थ्रेट ऐसा है कि जो चीज पहले हम हाथों से करते थे, नाउ द मशीन्स हैव टेकन। तो जिन कंपनीज में अभी भी दे आर नॉट एबल टू स्पेंड मनी, तो उनके लिए वो लॉस होता है। इफ अ कंपनी इज नॉट गिविंग अ 24/7 आपको सर्विस नहीं दे रहा है, और दूसरी कंपनी आपको 24/7 की सर्विस देती है, तो डेफिनेटली यू विल गो इन फॉर दिस। शिफ्ट इन डिमांड फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स टू ट्रांजिस्टर्स, from steam locomotives to diesel and electric engines, from fountain pen to ballpoint, from propeller aeroplanes जो चलाते थे to jets, and from typewriter to computer based work processor। These are all the new, and due to the inventions there have been number of अपॉर्चुनिटीज। पहले बिजनेस जिस चीज को पहले नहीं कर पाती थी, पहले जहां वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को नहीं समझ पाती थी, एक पर्टिकुलर रीजन को नहीं समझ पाती थी, नाउ इट इज पॉसिबल। एंड टुडे आई थिंक ए मोस्ट ऑफ अवर थिंग्स आर ऑनलाइन। आपको कंप्लेन करना, आपको खरीदना है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। फिजिकल प्रेजेंस इज नीडेड ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट, सोशल, ये आपका आता है 1 मार्कर क्वेश्चन में, एंड यू वुड बी आस्क कि ये कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एनवायरनमेंट है।
दिस विल कम एज एन 1 मार्कर क्वेश्चन, आपको इसमें से दे दिया. एटीट्यूड टूवर्ड्स प्रोडक्ट इनोवेशन, पहले हम सोशल करेंगे फिर टेक्नोलॉजिकल करेंगे. ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर प्रेफरेंस. कंसर्न विथ क्वालिटी ऑफ लाइफ, अभी जो आपने ऊपर एग्जाम्पल पढ़ा था. नाउ वी डोंट वांट, हम लोग अब क्या चाहते हैं, वी वांट हाइजीन. ईयर्स बैक दीज थिंग्स वर नॉट देयर. लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अभी आप अपने घर, मतलब कि इफ यू हैव पीपल हु आर ओल्डर, जो पुराने जमाने के हो, पुराने टाइप कोई हो, या यू कैन से दोज हु बिलीव इन द ओल्ड, उनसे आप पूछ के देखो, वो कहेंगे ये क्या है. दे डोंट बिलीव. Life expectancy, expectations from workforce, shift in the presence of women in the workforce is also social, because now society wants that women should go out. Birth and death rates, इसको आप इकोनॉमिक में नहीं, इसमें लेकर आओ. सोसाइटी में चेंजेस, पॉपुलेशन शिफ्ट, एजुकेशन सिस्टम, because of educational system and because of the literacy rate, हम awareness रखते हैं. Consumption habits and composition of family. This is the one for technological. ये था आपका टेक्नोलॉजिकल के लिए कि आप कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके टुडे यू आर एबल टू बाय एनीथिंग ऑनलाइन. अब क्लास 12 पॉलिटिकल एंड लीगल में यू शुड नॉट कंफ्यूज. Most of the time economic, social and technological are identified. Most of the time the mistake that students commit is when they are differentiating between political and legal. Political का मतलब हो जाता है the political conditions such as general stability, मतलब कंट्री के अंदर जो बार बार देर इज नो मूवमेंट्स, देर इज नो प्रोटेस्ट, जो रूलिंग का मतलब कि जो भी पावर में है उनके खिलाफ आवाजें नहीं उठ रही हैं. वो स्पेसिफिक एटीट्यूड दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स होल्ड टुवर्ड्स बिजनेस. राइट नाउ आई थिंक इन द summit, Modi ji has been applauded by everyone. Many of the countries are ready to do business with us. The significance of political conditions in business success lies in the predictability of business activities under political conditions. अब अंदाजा लगाते हैं कि भाई अगर ये गवर्नमेंट आई तो उनका रवैया टुवर्ड्स बिजनेस कैसे रहेगा, कैसे, हाउ. Certain times what happens is a particular political party may not be supporting a particular style, a particular system. जैसे हमारे यहाँ 1990 तक the government did not want the foreign companies to invest in India. That was the political attitude towards business. वो चाहती थी कि इंडियन बिजनेसमैन जो है he or she should be able to sustain here. और अगर वो कोई भी चीज को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते थे तो उस पर उनको टैक्सेस या फिर उनको कस्टम ड्यूटीज वगैरह देने पड़ते थे, जिससे चीजों की जो दाम होते थे वो ज्यादा या कम हो जाते थे, जिससे बिजनेस को लॉस होता था. वेरएस आफ्टर द इकोनॉमिक चेंज, जीडीपी जो हमारा एलपीजी हुआ था उसका, यानी कि वो जो एलपीजी हुआ था दैट वाज एन इकोनॉमिक चेंज, लेकिन वो जो डिसीजन किसने लिया था, पॉलिटिकल. गवर्नमेंट का एटीट्यूड टुवर्ड्स जो बिजनेस था वो चेंज हुआ. अभी जो गवर्नमेंट है इट इज वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स बिजनेस. On the other hand, there may be uncertainty of business activities due to political unrest. जैसे आपके श्रीलंका में थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पर अगर ये थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर आ गया तो आप इसको लीगल में नहीं लोगे. थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है कि बार बार आपका मोर्चा उठाना, वायलेंस, प्रोटेस्ट,
Political stability thus builds up confidence among business people to invest in the long-term projects for the growth of economy. Political instability can shake that confidence. यानी कि आपका मतलब कि पॉलिटिक्स अगर पॉजिटिव है तो बिजनेस में हम लगाएंगे कि हमें पता है कि भाई आगे ग्रोथ होगा. अभी अगर आप लोग स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हो, इफ यू आर फॉलोइंग स्टॉक मार्केट, देन यू विल सी दैट मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो है वो ऊपर जा रहा है. एंड स्पेसिफिकली इफ यू सी देयर आर सम बिजनेस जो लगता है कि आगे 2-3 साल बहुत अच्छा चलेगा. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक व्हीकल. Now the government is giving subsidy in electric vehicles. It is also giving the charging points. तो गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोग ईवीज बनाए. तो जो ईवी कंपनीज हैं, they are now benefited because of the political attitude towards them. ईवी इज टेक्नोलॉजिकल, लेकिन गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है उनके लिए, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है, तो आपके पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा होगा गवर्नमेंट, द रनिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी, नरेंद्र मोदी, ऐसे नेम्स होंगे, विच इज वन ऑफ द वेरी कॉमन क्वेश्चन, पिछले 4 साल से आ रहा. नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट की है. हमारा जो है वी आर हैविंग, हम लोगों ने दूसरी कंट्री के साथ में वी हैव शेयर्ड एन एग्रीमेंट. नाउ व्हाट आर द थिंग्स, मतलब उसमें आपको कैसे कैसे आएंगे. प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, द डिग्री ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक इश्यूज, मतलब कितना वो बिजनेस को पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंस देते हैं. डोमिनेंट आइडियोलॉजीज एंड वैल्यूज, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज थे उनकी आइडियोलॉजी थी कि एवरीथिंग शुड बी इंडियन. द नेचर एंड प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप एंड पर्सनालिटीज, द लेवल ऑफ पॉलिटिकल मोरालिटी. अभी योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जो है कई बड़े बड़े जाने माने हस्तियों को बुलाया था, and he said that he is going to inaugurate, or he is going to develop a full-fledged film city in UP. यानी कि ये उनका एक पॉलिटिकल थिंकिंग थी. उन्होंने ये मतलब एटीट्यूड दिखाया है कि ये जो है इस बिजनेस को जो है वी शुड गिव मोर इम्पोर्टेंस. The level of political morality, political institutions like government and उनसे जुड़ी agencies, their practices, nature of government intervening in business, मतलब it should not be in a negative way. The nature of relationship of our country with foreign countries. जैसे last year because of the some of the problems, हमारा जो रिलेशनशिप था विद चाइना इट हैड डिटीरियोरेटेड. एंड इंडिया के अंदर आपके 80% जो आपका रॉ मटेरियल्स है वो चाइना से आता है. तो गवर्नमेंट ने कई बिजनेस को जो है रॉ मटेरियल्स मंगवाने से मना कर दिया था. एंड व्हाट हैपेंड इज, जिन लोगों ने मंगवाया था वो पूरा का पूरा कस्टम्स के अंदर बेकार पड़ा हुआ था. तो दिस इज पॉलिटिकल आपका. नाउ लीगल एनवायरनमेंट किसको कहते हैं? द गवर्नमेंट, लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, कोर्ट जजमेंट, यानी कि इनमें आपके वर्ड्स हो सकते हैं जजमेंट, ऑर्डर, लॉ, ऐसे आपके वर्ड्स होंगे. पॉलिटिकल का मतलब हो जाता है जो पॉलिटिक्स में है उनका रवैया. एंड लीगल मतलब एक्ट विच इज देयर एज ऑन द पेपर. आपके में एक्ट, ऑर्डर, जजमेंट ऐसे आपके होंगे. इट इज इम्पेरेटिव फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एवरी एंटरप्राइज टू ओबे द लॉ
of the land. Therefore, adequate knowledge of rules and regulations framed by the government is a prerequisite for better business performance. हम लोग जब कंपनीज एक्ट करते हैं तो उसके साथ में आपके कंपनी लॉ बोर्ड के कई एक्ट्स होते हैं विच आर बाइंडिंग द कंपनी, एंड दैट इज व्हाई हमारे यहाँ पर व्हेन वी आर ओपनिंग अ कंपनी तो वी हैव अ कॉर्पोरेट लॉयर, और वो जो कॉर्पोरेट लॉयर होता है उसकी ड्यूटी होती है कि वो उन चीजों को देखे कि कहीं हम लोगों से कोई चीज नजरअंदाज तो नहीं हो गई. नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज कैन लैंड द बिजनेस एंटरप्राइज इनटू लीगल प्रॉब्लम. जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कंपनी एक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इज फेमा, यानी कि आप पैसा जो इधर उधर कर रहे हो. देन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, फैक्ट्री एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब कुछ आपके लीगल इनैक्टमेंट्स हैं और इनमें चेंजेस आती रहती हैं. Impact of legal environment can be illustrated with the help of government regulations to protect consumers. जैसे the advertisement of alcoholic beverages is prohibited, and it is not only prohibited, it is in some channels you can advertise it only after a certain time. Advertisements including packet of cigarettes carry the statutory warning that it is injurious. आपने देखा होगा कोई भी मूवी स्टार्ट होती है ना तो उससे पहले लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. इसमें जो मतलब कि जो एक्टर्स हैं दे आर नॉट प्रोमोटिंग, या फिर कभी कभी एनिमल्स के लिए लिखा होता है कि नो एनिमल वाज इंज्यूर्ड, या फिर मतलब कि हार्म ड्यूरिंग द शूटिंग, ऐसा उनको लिखना पड़ता है. एंड इफ दे डोंट गिव दैट स्टैट्यूटरी वार्निंग, मतलब वो नहीं देते हैं, then the particular distributor or that particular company can be sued. Similarly, advertisements of baby food must necessarily inform the potential buyer that mother milk is the best. और ये सब कुछ उनको फॉलो करना पड़ता है. Means everything which is there according to their own product, their own services. अगर आप लोग म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ते हो तो जब म्यूचुअल फंड आता है ना तो उसके अंदर एक वो जोर 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 से बोलते हैं म्यूचुअल फंड इज द is subject to market risk, please read all the documents before signing, ऐसा करके बोलते हैं. अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो कभी कभी इफ यू आर इन द मूवीज के बीच में भी आता है तो उसके अंदर लिखा होता है, जोर जोर से बोलते हैं. इंश्योरेंस के लिए भी बोलते हैं. ऐसा पता क्यों हुआ था? there were number of cases in 2000 I think. तब हमारे इंडिया के अंदर नए जो एनवायरनमेंट है, नया जो आपका बहुत सारे बिजनेस आए थे जिसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी पहले जहां पर वी हैड ओनली वन दैट इज LIC, नाउ इट वाज चैलेंज्ड बाय नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज इन द प्राइवेट सेक्टर्स. अब प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो सबसे नुकसान होता है वो ये होता है कि दे आर इन कॉम्पिटिशन. कौन किससे सस्ता दे रहा है और कौन किससे महंगा दे रहा है. तो होता क्या था कि वो लोग फटाफट फटाफट एडवर्टीजमेंट करते थे, 100 रुपए दो आपको लाख रुपए मिल जाएंगे. देर आर अब इंडिया इज नॉट अ कंट्री वेयर लिटरेसी इज देयर, और लिटरेसी छोड़ दो, हम तो पढ़े लिखे होते हुए भी हम लोग कई बार साइन कर देते हैं ये सोचकर कि यार दूसरा सामने वाला क्या सोचे. तो तब क्या हुआ, देयर वर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज इन इंश्योरेंस. कई जगहों पे क्या होता था, बूढ़े लोग होते थे उनसे साइन करवा लेते थे कि भाई आपको इतना पैसा मिलेगा. नाउ वो लोग तो अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करते हैं, लेटर ऑन उन्हें पता लगता था कि वो जो पैसा लगा था वो उनके मरने के बाद दूसरे को मिलेगा. ऐसे कई आपके एग्जाम्पल्स हुए. देन द गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक रूल निकाला, एक एक्ट निकाला जिसके अकॉर्डिंग व्हेन यू आर एडवर्टाइजिंग म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस, आप वो जो पहले वो मतलब कि वो उसका नाम क्या, वंदे भारत की स्पीड से चलता है
उसको आपने जो है बिल्कुल बैलगाड़ी की स्पीड से बोलना है. And when you are giving the documents, so time to time कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग ये बार बार बोला जाता कि बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों को डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर पढ़ना चाहिए. सो अगर आपकी कंपनी उस सेक्टर में आती है और ऐसा कुछ चेंज होता है तो दैट इज आपका लीगल एनवायरनमेंट. दिस इज आपका जो है व्हाट इज द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया. दिस इज अ न्यू एडेड कंसेप्ट ऑफ योर सिलेबस. उसके बाद आपका जो मैंने आपको बताया था द 3 पार्ट्स LPG, दैट इज द चेंज. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका आएगा दैट इज डीमोनेटाइजेशन. The economic environment which you are already doing in your economy consist of various macro level यानी कि बड़े लेवल पर related to means of production and distribution of wealth. फर्स्ट हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे रहा. आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसी को आपकी जो बुक है IED दैट इज वन. द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, बिकॉज इंडिया के अंदर जब स्टार्टिंग में 44 में 1944 में when इंडियन जो इंडस्ट्रीज थे उस वक्त में वी डिड नॉट हैव द इंडस्ट्रीज. वी यूज टू हैव अ बंच ऑफ पीपल जिनका जो लोग वेल्थ होल्डर्स थे. तो उन लोगों ने उस वक्त में एक दे हैड गिवन एन इकोनॉमिक प्लान जिसका नाम था बॉम्बे प्लान. बट लेटर ऑन देयर वर नंबर ऑफ डिस्क्रिपेंसीज. कुछ आपके जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं लाइक CPI, उनका मानना था कि इंडिया शुड अडॉप्ट सोशल यानी कि हमारा जो है बेस्ड ऑन द रशियन मॉडल होना चाहिए जहां आपके मेजर industries are lying with government. Whereas there were number of people who believed that it should go in for the capitalist like US, jahan most of the industries are in the hands of the privates. इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि अगर हम इनमें से किसी एक को भी लेते तो दैट वुड हैव ruined द इकोनॉमी, क्योंकि उस वक्त हमारे पास कैपिटलिस्ट थे नहीं. और अगर हम उनको कैपिटलिस्ट को अलाउ करते दैट वुड हैव लेड टू मोनोपोली. एंड दैट इज व्हाई इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वाज प्लान्ड ऑन द बेसिस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, पब्लिक एंड प्राइवेट. और इसीलिए हमने उसको पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों को किया. नो डाउट अभी हमारे धीरे धीरे करते हुए जो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इन द पब्लिक सेक्टर्स हैं दे हैव बीन रिड्यूस्ड टू 3, बट पहले 18 थे. देन economic policies of the government including industrial, monetary and fiscal policies. planning, हमारे फर्स्ट ईयर जो प्लानिंग था हमारा जो स्टार्ट हुआ था 5-year प्लानिंग में, the first was for agriculture but the second was for industry. but there was a mixed reaction क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि industrial support was not there. then the national income, distribution of income, rich and poor के बीच में there is a great disparity. per capita income, disposable personal income, rate of savings, investment. अभी तो rate of savings काफी increased है, पहले तो ऐसा नहीं था. people were not this much aware of what you call as savings. पहले लोगों को जो है सेविंग्स का मतलब नहीं पता था. सेविंग्स का मतलब पहले टाइम के अंदर दो ही चीजें होती थी, LIC में डाल दो या फिर घर खरीद दो, बस यही दो चीजें सेविंग्स होती थी. अभी क्या है, आई वॉज वन डे मतलब कि आई फॉलो मेनी थिंग्स. तो मैंने मैं इंस्टा पर एक मतलब कि फाइनेंशियल वो फॉलो करती हूँ, फाइनेंशियल प्लानर. उसके अंदर उन्होंने ना एक बहुत सुंदर सा चार्ट बना रखा था जिसके अंदर दे हैड गिवन हमारे एज के अकॉर्डिंग व्हाट शुड बी द इन्वेस्टमेंट्स दैट वी नीड टू हैव. लाइक इफ यू आर अंडर 30 तो आपके मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट शुड बी इन द स्टॉक मार्केट.
and minimum should be in the मतलब कि banks में, and if you are on the other side आप 60s पर हो तो आपका stock market में only 15% should be there, you should have more in your hand. तो ये ऐसे जो प्लानिंग्स होती है ये आजकल बहुत अच्छा है, मतलब we are having all these value of exports and import, balance of payment and so on. Then financial institutions, they all were set up only later 1990s. banks हमारे पास थे and इनको nationalize करने का जो जिम्मेदारी थी that went to श्रीमती इंदिरा गांधी. Then transportation, communication all developed only in the later period. Business enterprises in India do realize and impact the importance and impact of economic environment on their working. Almost all annual company reports presented by their chairpersons devote considerable attention to the general economic environment prevailing in the country and its assessment. And it has been steadily changing due to the government policy. ये आपका जो है, जो मैंने अभी आपको बताए थे उनका एक एक करके है. The Indian at the time of independence, Indian economy was agricultural and rural in character. 70% of the population was in agriculture, 85% people were living in villages. Production was irrational, low productivity और टेक्नोलॉजी तो थी नहीं. And moreover, communicable diseases, mortality rates were high. कुछ नहीं था. इसीलिए the government took several steps including control by the state, जो आपको मैंने ऊपर बताया that we took the mixed economy and reduced central planning, reduced importance of private sector. क्योंकि उस वक्त में अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर को देते तो इंडियन डेवलपमेंट वाज मे बी इट वाज नॉट दैट कुड हैव नॉट बीन, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं था और प्राइवेट सेक्टर तो आपका होता ही प्रॉफिट के लिए है. The main objective was to initiate rapid economic growth, to raise the standard of living, reduce unemployment and poverty, become self-reliant and set up a strong industrial base with emphasis on heavy and basic industry, reduce the inequalities, adopt a social pattern. और इसके लिए ही उन्होंने क्या किया था, एज आई सेड देयर वर नंबर ऑफ चेंजेस, बट जो मेन चेंज हमारा आया था वो आया था 1991 में, जिनको हम न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. In accordance with the economic planning, the government gave a lead role to the public sector for infrastructure industries. क्योंकि भाई जो आपके बिल्डिंग्स है, जो आपकी मेन आइटम्स है, अगर वो प्राइवेट करेगा तो लोग उसको यूज नहीं कर पाएंगे. एंड प्राइवेट को कंज्यूमर गुड्स, जितने भी आपके टीवी, रेडियो, ये सब आपके प्राइवेट के अंदर आते थे. At the same time, the government imposed several restrictions, regulations and control on working of private sector enterprises. Indian experience with economic planning has delivered mixed results. Then in 1991, the economy faced a serious foreign exchange crisis, high government deficit and a rising trend of prices despite bumper crops. And उस वक्त World Bank gave us this suggestion to revamp our economic. इसका पूरा एक वीडियो है, you can see, जिसके अंदर प्रॉपर आपका जो चेंज हुआ था, जिसको आई थिंक पीवी नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड मनमोहन सिंह जी वाज द फाइनेंस मिनिस्टर. उसका पूरा एक वीडियो है which is there or uploaded on, you can see that. First, the government reduce the number of industries under compulsory licensing to 6, अब 3 है. मतलब का इसका मतलब क्या है, पहले क्या था, आपके जो इंडस्ट्रीज थे दे वर कंप्लीटली अंडर गवर्नमेंट, एंड अगर उनमें से कोई इंडस्ट्री का में प्राइवेट आना चाहता था तो दे हैड टू गो थ्रू द प्रोसीजर ऑफ लाइसेंस व्हिच वाज वेरी डिफिकल्ट इंडीड. Many of the industries reserved for public sector under the policy were de-reserved. The role of public sector was limited to
to 4 industries of strategic, that is आपका arms and ammunition, जो आपके मतलब जिसमें गवर्नमेंट जो है वही पैसा ज्यादा खर्च करता, उन्हें उन्होंने रखा हुआ, जैसे रेलवेज है आपकी, उसमें भी वो धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर रहे हैं. डिसइन्वेस्टमेंट, नाउ आपके पेपर में 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट, एंड दिस इज अ वेरी रेगुलर क्वेश्चन. व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि जिसमें गवर्नमेंट ने पैसा लगा रखा था उससे पैसे को पुल आउट करना, दैट इज कॉल्ड एज डिसइन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पुल आउट करना. लाइक आपका जो अभी रिसेंटली द एग्जांपल इज ऑफ एयर इंडिया. एयर इंडिया वाज अंडर पब्लिक सेक्टर, बट उसको डिसइन्वेस्ट करके नाउ इट हैज बीन ट्रांसफर टू टाटा एयरलाइंस अंडर द प्राइवेट सेक्टर. पॉलिसी टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल, पहले क्या था कि आपका फेरा एंड देन देयर वर नंबर ऑफ एक्ट्स, और आपका जो है आप एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज लेकर नहीं आ सकते थे, कर नहीं सकते थे, मींस इन द बिजनेस डील्स आल्सो नंबर ऑफ रेगुलेशंस वर देयर. द शेयर ऑफ फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन, अभी क्या है, हम यहाँ रहते हुए अमेरिकन शेयर्स या वहां के लोग यहाँ के शेयर्स को भी कर सकते हैं टू 100%. एफडीआई, यानी कि पहले they could only invest on certain things, अब they can even invest in the capital of land. Directly they can put up their industry here, like Samsung and Apple have done it. Automatic permission was now granted for technological agreements with foreign companies. जितनी गाड़ियां आज आप बैठ रहे हो, सब कुछ because of this. सबसे पहले मारुति entered with venture in Suzuki, then Bajaj आपका, TVS, Suzuki आपका, then आपके हीरो, होंडा, ऐसे आपके एग्रीमेंट्स हुए थे. Not only in the automobile industry, even in the health and all. Foreign investment proportion board को specifically fix किया गया, set किया गया to channelize the foreign investments. And that is the reason कि companies like Ranbaxy, Infosys or Wipro have their foreign investment in other countries, and many of the countries have their direct investment in our country, like आपका Cargill Foods. Appropriate measures were taken to remove the obstacles in the growth and expansion of industrial unit of large industrial houses. पहले अगर आप कहो तो 4 नाम आते थे, टाटा, बिरला, देन आपका था आई थिंक डीसीएम था शायद, और ये सब जो आए थे ना, जिनको आज हम कहते हैं दे आर ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस चेंज. Small scale sector was assured all help and accorded due recognition. In fact, अभी जो 2023 and 22 की जो policies हैं, they have supported small scale and medium scale more. In a sense, the policy has sought to liberate industries from the shackles of licensing system. पहले आपका क्या था, liberalization मतलब आपका था any industry if you need to set up specifically जहां capital ज्यादा है आपको license लेना पड़ता था. Now it has been removed or it has been eased. Drastically reduce the role of public sector, यानी कि बहुत सारी major industries are under private, जैसे आपके electricity, पहले आपका जो दिल्ली में था देसू के अंडर था, then for the other it was, then आपका जो telecommunication था BSNL था, now we are having number of service providers. Encourage foreign private participation in India's industrial development, which is called as globalization. In our next session, we would be discussing all these in detail, LPG, and of course, as I said, one of the important concept, that is आपका demonetization. These will be there. So these are the one which are very important, because ये आपके जो है, again they would be coming with the liberalization के लिए you would be given some word, means licensing. Then आपका P, privatization, government का disinvestment,
and giving it to the private people. And globalization, inviting the global companies to invest in India or giving them a free platform, free market. ये आपके की वर्ड्स होंगे एंड यू माइट बी asked to explain कि ये क्यों स्टेप लिए गए. So this is what we have done today. Today we have read what are the components, elements या फिर dimensions of business environment. और वो थे हमारे technological, social, economic, political and legal. Then we have done what was the economic condition and why the change was introduced. Now, what are the changes that we would be doing in our next session? Right?